डिवाइजर्स इंटैग्रल डोमेन दा। हाँ जी, सब तो पहला इसकी डेफिनेशन है, लेट आर बी ए रिंग एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए जीरो डिवाइजर। किसी भी एलिमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰਿੰਗ ਦਾ? ਇਫ a ਕੀ ਹੋਵੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ, ਇਫ a is not equal to 0 then and there exists a non-zero element b such that ab is equal to 0 or ba is equal to 0. If ab is equal to 0 and b is non-zero, even a is non-zero element, then a is called zero divisors. Okay, obviously if ba is equal to 0, even a and b both are non-zero, then b is also called zero divisors in R. This is definition of zero divisors. Now next definition of cancellation property, as we have discussed in group theory, same in ring theory. A ring R is said to satisfy left cancellation or right cancellation property if for all a b c belongs to R, three elements in R, a is not equal to 0 and ab is equal to ac, then this implies b is equal to c. Therefore this is cancellation property. Now we discuss one theorem, that is between a relation between cancellation property and zero divisors in R. This is very important theorem. Now theorem is, let R be a ring, then the following conditions are equivalent. And the first condition is R has no zero divisors. We discussed in earlier, R is zero divisors, a ring with zero divisors. But here we have to discuss R has no zero divisors, R satisfy left cancellation property, R satisfy right cancellation property. Second and third are same, left or right cancellation property. Now first implies second. Suppose that R has no zero divisors. If R has no zero divisors, we have to prove R satisfy left cancellation property. Let a b c belongs to R. A is not equal to 0 and ab is equal to ac. For left cancellation property, we have to prove that b is equal to c. Now ab is equal to ac, ac nu दूसरी side ले आओ, ab minus ac is equal to 0. Taking with common a into b minus c is equal to 0. Given किया R has no zero divisors, it is given. Now no zero divisors mean if A is not equal to 0. देखो इतने product 0 आ, with zero divisors दी definition च आपा की कितना सी last definition में repeat कर रही हैं. हाँ जी, इस definition च किसी R A is not equal to 0, B is non-zero element, then AB is equal to 0. Product 0 आ. बट एक आधी डेफिनेशन सी जीरो डिवाइजर्स दी, हुण आपां कह रहे हैं नो जीरो डिवाइजर्स. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि ए बी जीरो जे है ते then we prove that we can choose A is equal to 0 और B is equal to 0. पर इत्थे A B ਤਾਂ 0 है and A is non-zero, A भी non-zero आ, then obviously R has no zero divisors ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ B 0 ਹੋਏਗਾ. That means b minus c is equal to 0. जे R with zero divisors are, that means a ते b non-zero are, ते then दोनों दी product 0 are. जे R has no zero divisors, no zero divisors ਦਾ मतलब without zero divisors ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ product 0 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ element non-zero ਆ, then दूसरा ਕੀ होएगा 0 होएगा. b minus c 0 आ गया. If b minus c is equal to 0, then we get b is equal to c. This is left cancellation property. Now second implies first. Right is same. Right is, that is left cancellation or right cancellation भी होएगा. Now we prove second implies first. Let the ring R satisfy the left cancellation property, and we have to prove that R has no zero divisors. Okay. Let A belongs to R. A इस तरह का element लेता such that A is not equal to 0. Suppose B belongs to R. B are the element such that AB is equal to 0. इन्ना दोनों दी product की है 0 आ. आपा proof की करना सी no zero divisors. Okay. आपा ले लिया product की है 0 है. B जेड़ा element ring दा obviously जे आपा लेने हैं कि with zero divisor it should be not equal to 0. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ suppose that R ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, R has zero divisors
that means let a is not equal to 0, suppose b belongs to rb such that इधर the element है which is non-zero and ab is equal to 0। हाँ जी ए बी इज इक्वल टू 0 आ 0 इज इक्वल टू आप ए इंटू 0 भी लिख सकते हैं। हुण अपन गिवन की आ लैफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लैफ्ट कैंसिलेशन च की है ए ना ए कैंसिल हो गया बी 0 आ गया। ओके नाउ इफ जे बी ए इज इक्वल टू 0 आ देन फॉर बी इज नॉट इक्वल टू 0, जे बी नॉन 0 आ देन बी ए इज इक्वल टू सेम दूसरा तरह कर रहे हैं क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 0 लिता सी, इत्थे बी ए इज इक्वल टू 0 लिता कि जे बी नॉन 0 आ तो देन बी ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी 0 लिख सकते हैं। हाँ जी अगे एदा मतलब ए 0 आ गया, एदा मतलब 10 बी ए इज इक्वल टू 0 ए 0 आ गया, ए भी कॉन्ट्राडिक्शन आ। thus ba is equal to 0 this implies b is equal to 0, जे a 0 is equal to 0 contradiction आ obviously दोनों दी प्रोडक्ट ਤਾਂ ਹੀ 0 होएगी, जे a non 0 आ ते then b 0 होएगा, b is equal to 0 so a is not a zero divisor, जे b 0 हो गया ते a की आ zero divisors नहीं रहना। हाँ जी ए 0 डिवाइजर्स नहीं रहना ते आपां इत्थे की लिखता सी a is not equal to 0 कि b एहो जे एलिमेंट है सच दैट a b is equal to 0। ਇਹਦਾ मतलब की है कि अपने को रिजल्ट की आ गया r has no zero divisors। Similarly a is not a zero divisor, similarly we can show that first implies second। हाँ जी hence the conditions are equivalent। Next है condition a commutative ring R with identity 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ commutative ring ਦੀ identity ਕੀ ਹੈ 1 which is not equal to 0 is called an integral domain। next definition है integral domain ਦੀ। हाँ जी integral domain in short ID ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ I dot D if R has no zero divisors। ਜੇ R ਦੇ no zero divisors ਹੋਣਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ if commutative ring R with identity 1 and without zero divisors then ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ integral domain ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ integral domain ਲਈ commutative ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ring ਦੀਆਂ properties ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, identity ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਲ without zero divisors ਦੀ property ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ integral domain ਬਣੇਗਾ। हाँ जी सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, रिंग ऑफ रियल नंबर्स, कंपलैक्स नंबर्स, ये सारियां दी सारियां इंटैग्रल डोमेन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग इन्हां च यूनिटी भी ਹੁੰਦੀ है ਤੇ दूसरा रिजल्ट ਇਹਨੂੰ इंटैग्रल डोमेन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी एक होर प्रॉपर्टी है द रिंग Z6 ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 इज नॉट एन इंटैग्रल डोमेन। ये इंटैग्रल डोमेन नहीं होएगी, ये मैं तुहानू डिस्कस कर लेने अगे एग्जाम्पल आएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि मॉडुलो 6 इज नॉट एन इंटैग्रल डोमेन। इंटैग्रल डोमेन कदों हुंदी है जदों विदाउट जीरो डिवाइजर्स हुंदा। विदाउट जीरो डिवाइजर्स मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है नहीं होएगा, दैट मीनस Z6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨॉट ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਦੂਸਰਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ 2 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੇ 3 ਲੈ ਲਓ। 2 ਕੀ ਆ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੋਡੂਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੋਡੂਲੋ 6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ Z6 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਆ ਗਿਆ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। पर जो उन्होंने प्रोडक्ट लीती 2 into 3 दैट इज 6, जो 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ 0 ਆਇਆ ਨਾ। दैट मीन्स ਦੋਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ 0 ਆ। दैट मीन्स इट इज विद जीरो डिवाइजर्स। Z6 is with zero divisors। जे with zero divisors ਆ ਫਿਰ इंटैग्रल डोमेन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ बिकॉज इंटैग्रल डोमेन ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दैट इज विदाउट zero divisors। ओके ਹੁਣ नेक्स्ट थ्योरम है for any positive integer n the ring Zn of all integers modulo n is an integral domain। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ Z6 ਕੀ ਹੈ integral domain नहीं है, क्लियर। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ थ्योरम ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। for any positive integer n
the ring Zn of all integers modulo n is an integral domain. Integral domain कदों होएगी? If and only if n is prime integer. जदों n prime होएगा ते then integral बनेगी. जे integral domain आ then obviously n should be prime integer. हाँ जी देखो proof ਇਹਦਾ. Let Zn be an integral domain. Integral domain ले ली. आपा की show करना? We have to prove that n is a prime number. Then हाँ जी इंटेग्रल डोमेन ऑब्वियसली इंटेग्रल डोमेन दैट इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होएगा ते एक ही होएगी विदाउट 0 डिवाइसेस होएगी क्योंकि इंटेग्रल डोमेन दी डेफिनेशन है. देन 1 इज नॉट इक्वल टू 0 1 नॉन 0 होएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. हाँ जी इन Zn एंड हैंस n इज ग्रेटर देन 1 n की होएगा ग्रेटर देन 1 होएगा. इफ n is not a prime, we have to prove that n is a prime integer. Suppose that n is not a prime, and if n is not prime then n should be composite. N is a composite number, that means then n is equal to p into q for some integer p and q where p and q lies between 1 to n. So we have जे आप रेजिड्यू क्लासेस ले लिए p ते q that is equal to n. Obviously p q is equal to n ना ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀਆਂ क्लासेस भी n ਦੀ n क्लास ਦੀ इक्वल होएगी. ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਆ? this is equal to 0 क्यों? क्योंकि p q n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ. that means ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ then obviously ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ 0 ਆ ਪਰ ਨਾ ਹੀ p 0 ਆ neither p not q is 0 of the ring Zn. ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੇ 3 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ p ਤੇ q ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ p q ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ n ਦੀ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏ ਨਾ 0. that means ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ. ਪਰ p ਤੇ q ਇਟਸੈਲਫ ਕੀ ਆ? ਨॉन 0 ਆ. ਇਹ ਕਾਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਦਆਊਟ 0 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ. पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕਾਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਦ 0 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ. ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਦਆਊਟ 0 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ. ਹੋਗੀ ਨਾ ਉਲਟ. this thus we get a contradiction. एक कंट्राडिक्शन आ गई. ਇਹਦਾ मतलब अवर सपोजिशन रॉन्ग आ गई. दैट मीन्स ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ n is not a prime integer and must be prime. m ਕੀ ਹੋਏਗਾ? प्राइम होएगा. हाँ जी हुण कन्वर्सली देखो n ਨੂੰ प्राइम लेके चलना and we have to prove that Zn is an integral domain. Conversely consider Zn for prime integer n. Zn ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੀ ਆ? prime integer. We have to prove that it is an integral domain. Integral domain that means it is without 0 divisors. Okay, let ए ते बी दो ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈ? ਨॉन 0 ਲੈ ਲੈ. Zn by 0 ਲਿਖਿਆ ਨਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? a ਤੇ b ਦੋਨੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ Zn ਦੇ ਬਟ both are not equal to 0. now if a ਤੇ b ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੇ 0 ਹੈ ਜੇ 0 ਹੈ then ਆਪਾਂ प्रूफ की करना? नॉन 0. क्योंकि आप की प्रूफ करना? विदाउट 0 डिवाइसेस प्रूफ करना ताकि इंटैग्रल डोमेन प्रूफ होएगा. मान लिया इन्हां दी प्रोडक्ट की है 0 है then a b obviously ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ. a b this is equal to 0. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਇਹ 0 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n डिवाइड कर रहा ए बी प्रॉपरली डिवाइड कर रहा कि रिमाइंडर की आ रहा तुहाडा 0 आ रहा. दैट मीनस n डिवाइड्स ए बी. हाँ जी n ए बी नू डिवाइड कर रहा पर n अपने को है कि आ? प्राइम. प्राइम की डेफिनेशन लगा दो. इफ n डिवाइड्स ए बी एंड n इज प्राइम नंबर देन वी हैव आइदर n a नू डिवाइड करेगा और n किनू डिवाइड करेगा? b नू. जे n a नू डिवाइड करेगा ਇਹਦਾ मतलब की आ? a जिहड़ी आ ਉਹ की होएगी? ए दी क्लास जी बनेगी वो की होएगी? 0 के बराबर क्योंकि पूरा डिवाइड कर गया. जे एन बी नू डिवाइड कर रहा मतलब बी भी की होएगा? 0 होएगा. बट उपर तो आप लैके चले सी स्टार्टिंग ते कन्वर्सली च ए ते बी दोने की आ? नॉन 0. बोथ द केसेस आर नॉट पॉसिबल एज ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स अवर सपोजिशन रॉन्ग होगी. रॉन्ग की आप लिता सी विद 0 डिवाइसेस, सो गलत हो गया. दैट मीन्स Zn इज
विदाउट जीरो डिवाइजर, सो Zn इज एन इंटैग्रल डोमेन। यही आप प्रूव करना सी। हाँ जी, नेक्स्ट एक थ्योरम आ, a commutative ring R with identity 1 not equal to 0 is an integral domain if and only if cancellation law hold for multiplication। कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी है, इंटेग्रल डोमेन होएगा, ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। उसी तरह ही आर इंटेग्रल डोमेन है, इंटेग्रल डोमेन है तो आप कैंसिलेशन लॉ ले लिया, ए बी सी आर में बिलोंग करते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉमन कर लिया, इंटैग्रल डोमेन आ। ये जी ताड़ी फर्स्ट आ ओदी ही स्टेटमेंट आ, जेडे मैं इक्वलेंट वाले पार्ट्स करवाए सी ना कि अपने को विद नो जीरो डिवाइजर्स आ, और सेकंड पार्ट सी लैफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन। उसी थ्योरम की ये स्टेटमेंट आ जाती है, सिर्फ इस तरह पूछा जाता है इंटैग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम वही रिजल्ट आ। हाँ जी, नैक्सट डेफिनेशन हैगी बड़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन रिंग की। डिवीजन रिंग की होंदा आ रिंग आर विद आइडेंटिटी 1 नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग कदों कहांगे, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट। जदों हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होवे, यूनिट का मतलब इनवर्टिबल होवे। ध्यान देखियो, हरेक नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का की होवे यूनिट होवे, इनवर्टिबल होवे। और गिवन की आ आर रिंग आ विद आइडेंटिटी 1 है, ये विच कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी नहीं होंगी डिवीजन रिंग लिए। डिवीजन रिंग लिए रिंग ते आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी चाहिए और हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होना चाहिए, दैन वो रिंग की बन जाता डिवीजन रिंग बन जाता। हाँ जी, आ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग हुण जे नाल कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगा दिए ते नाल डिवीजन रिंग हो जाए। डिवीजन रिंग का मतलब आइडेंटिटी ते यूनिट वाली प्रॉपर्टी होवे, दैन इनू आपां की कहांगे फील्ड कहांगे। ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड ए फील्ड। That means a ring R with identity 1 is called a field if R is commutative and every non-zero element of R is a unit. Clear? Next, this theorem is very important. Any field is an integral domain. फील्ड हमेशा इंटैग्रल डोमेन होंदी है। हुण देखो ऊपर जिहड़ी आपां कीती है फील्ड की डेफिनेशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी होगी, आइडेंटिटी वाली भी होगी ते नाले यूनिट वाली भी होगी। सिर्फ एक इंटैग्रल डोमेन की रह गई सी, ओके, फील्ड ली। हुण उही आपां कर रहे हैं, एनी फील्ड इज एन इंटैग्रल डोमेन। प्रूफ देखो, लेट आर बी ए फील्ड, रिंग को आर फील्ड ले ली एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिंग दे एलिमेंट्स ले दे फील्ड दे such that A is not equal to 0 and AB is equal to 0। हाँ जी, हुण आपां की प्रूफ करना सी इंटैग्रल डोमेन लई विदाउट जीरो डिवाइसेस। विदाउट जीरो डिवाइसेस का मतलब जो जीरो डिवाइसेस नहीं होएगा, दैट मीनस जे ए नॉन जीरो आ उन्हां दी प्रोडक्ट जीरो आ ते दैन बी की होना चाहिए जीरो होना चाहिए। जे बी जीरो हो गया दैन दिस डेफिनेशन इज ऑफ नो जीरो डिवाइसेस। ओके, हाँ जी, ए नॉन जीरो ले लिया, ए बी की प्रोडक्ट जीरो ले ली। सिंस ए नॉन जीरो आ ऑब्वियसली फील्ड दी हुई है, फील्ड का मतलब की होंदा हरेक नॉन जीरो एलिमेंट की होएगा यूनिट होएगा, यूनिट का मतलब इनवर्टिबल होएगा। देयरफॉर ए भी नॉन जीरो आ, देयरफॉर ए की होएगा यूनिट, यूनिट का मतलब एदा इनवर्स की करेगा एग्जिस्ट। देन हुण अपन गिवन किया ए बी इज इक्वल टू 0 गिवन है, दोनों पासे प्री मल्टीप्लाई कर दी ए इनवर्स ना, राइट हैंड साइड पे तो 0 ही रह गया एंड इन लेफ्ट हैंड साइड कंबाइंड ए इनवर्स एंड ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बी 0 आ गया तो बी 0 आ गया, देन ए डेफिनेशन का दी बन गई नो जीरो डिवाइजर्स। सो आर हैज नो जीरो डिवाइजर्स, दैट मीन्स आर कम्यूटेटिव रिंग अपने को है विद 1, क्यों, क्योंकि फील्ड आ, फील्ड दे विच ही ये प्रॉपर्टीज आ। और विदाउट जीरो डिवाइसेस आप हम प्रूव कर दिता, ਇਹਦਾ मतलब अपने को की बन गई आर इज एन इंटैग्रल डोमेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आ। हाँ जी, नेक्स्ट है एनी हुण एक कन्वर्स है इहदा, एनी फील्ड इज एन इंटैग्रल डोमेन बट हरेक इंटैग्रल डोमेन फील्ड नहीं होंगी।
इंटैग्रल डोमेन की होनी चाहिए फाइनाइट, एनी फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन इज फील्ड। कन्वर्स इहदा ट्रू नहीं हुंदा पिछली थ्योरम दा, बट जे फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन होवे फिर फील्ड बनती है। प्रूफ देखो, लेट आर बी ए फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन, आर फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन आ, सपोज आर इज इक्वल टू दिस, फाइनाइट नंबर्स ले ले a1 a2 an, ओके। let a belongs to r, a रिंग का कोई एलिमेंट है सच दैट a is not equal to 0। कंसीडर करो कोई सैट S जिहदे विच की आंदे आ a a1 a a2 a an एलिमेंट्स इस तरह दे आंदे, क्योंकि रिंग आ क्लोजर प्रॉपर्टी हुंदी आ अंडर मल्टीप्लिकेशन, then obviously a1 भी ਇਹਦਾ ਹੀ एलिमेंट होएगा, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स रिंग ਦੇ आ, obviously S ਕੀ ਹੋਏਗਾ रिंग ਦਾ सबसेट होएगा, नाल लिखिया होया बिकॉज आर इज क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जिहड़ी तुहाडी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हुंदी है वो प्रॉपर्टी दे अकॉर्डिंग है। हुण आपां की कहने आ कि ये एस दे सारे एलिमेंट्स आपस दे विच डिस्टिंक्ट होंगे, ये आपां प्रूव करना। लेके चलते हैं कि कोई दो एलिमेंट्स आपस च बराबर है, उल्ट लेके चलते हैं। इफ ए आई इज इक्वल टू ए जे, कोई भी दो एलिमेंट्स ले ले, ए आई नाम देता, जे नाम देता, आई ते जे ओबवियसली की 0 ते एन दे विच बिलोंग करते हैं। हाँ जी, दैन जे दोने बराबर आ तो दैन कैंसलेशन लॉ लगा दिए, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दिए। हाँ जी, लेफ्ट कैंसलेशन, क्योंकि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्यों लग सकता, बिकॉज इंटैग्रल डोमेन दी है। फर्स्ट हम थ्योरम की सी कि जे इंटैग्रल डोमेन आ दैट मीनस नो जीरो डिवाइजर्स आ, दैन फर्स्ट लेफ्ट कैंसलेशन ते राइट कैंसलेशन लॉ लग सकता। हाँ जी, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंगली की हो गया, ए आई इज इक्वल टू ए जे आ गया अपने को। हाँ जी, ए आई इज इक्वल टू ए जे आ गया। ए आई ते ए जे किदे एलिमेंट सी, आर दे। आर दे किन्ने एलिमेंट, आर की सी फाइनाइट, आर दे विच तां एन एलिमेंट सी, जे ये अपने को बट आर दे एलिमेंट्स तां सारे फाइनाइट सी, सो अपनी सपोजिशन गलत होगी, क्योंकि जे ये ए आई ए जे दे बराबर हो गया, दैट मीनस आर दे एलिमेंट्स की होए ने बराबर हो जाने हैं, बट वो तो हो नहीं सकता बिकॉज आर आपां की लिखता सी फाइनाइट ते एन एलिमेंट्स लेके चले सी, और जे इक्वल हो गए फिर तो इन्हां दा ऑर्डर ही घट जाना। ਇਹਦਾ मतलब एस के एलिमेंट्स भी की होंगे, बराबर नहीं होंगे। एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होंगे। जे सारे डिस्टिंक्ट होंगे, एस दे विच किन्ने एलिमेंट्स होंगे, एन। आर दे विच भी किन्ने एलिमेंट्स सी, एन। ਇਹਦਾ मतलब एस का ऑर्डर ते आर का ऑर्डर की हो गया, बराबर हो गया। हाँ जी, एस आर का सबसैट सी, इन्हां दा उन्हां दा ऑर्डर भी बराबर आ, और ऑर्डर किते बराबर हो गया, एन दे। नाउ सिंस आर कंटेन्स 1, आर दे विच 1 है अपने को, आइडेंटिटी इंटैग्रल डोमेन है, सो जे आर दे विच 1 है ऑब्वियसली एस दे विच भी 1 है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और एस आर का सबसेट भी है। सो वी हैव एस का कोई ना कोई एक एलिमेंट 1 के बराबर होएगा, क्योंकि एस दे विच आइडेंटिटी है। सपोज कर लो ए जे कोई इहो जिहा एलिमेंट है जिहड़ा 1 के बराबर है। हाँ जी, जे ए जे 1 के बराबर है, ਇਹਦਾ मतलब की है, ए इनवर्स की प्रॉपर्टी होंगी है, दैट मीनस ए की हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। एंड सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर, और ए रिजल्ट किहदे लई होल्ड करेगा, सारे दे सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स लई होल्ड करेगा। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब देयर फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज ए यूनिट, बिकॉज ए भी नॉन जीरो सी, ए यूनिट हो गया। मतलब कोई भी रिंग का नॉन जीरो एलिमेंट लवांगे, हरेक का यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जे हरेक नॉन जीरो एलिमेंट इन आर यूनिट हो जाए, दैन आर की होल्ड हो जाएगा फील्ड। यही आप प्रूफ करना सी। इतने बेटे जिथे आई जे लाइज बिटवीन 0 to n है, इतने 1 to n कर दियो, 0 आप नहीं लैनी, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो ए दे बराबर ही होए ने, ए तो है ही एलिमेंट है, क्लीयर, रिंग का है ही, ए लिखने की लोड़ नहीं, 1 to n कर दियो। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी अपने को थ्योरम प्रूव होगी। हुन नेक्स्ट है लास्ट वन इज दैट इज करैक्टरिस्टिक। लेट आर बी ए रिंग इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that na is equal to 0 for all a belongs to r।
ਰਿੰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ na is equal to 0 ਹੋਵੇ then the least such positive integer is called characteristic of the ring। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ na is equal to 0 ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ na is equal to 0 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ a raised to power n is equal to ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ n is the order of a ਪਰ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ na is equal to 0 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मतलब कि a ਨੂੰ n टाइम्स प्लस करो तो आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਵੇ पर रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਬਿਲਟ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ इसलिए हुण जे आपां एडिशनल na is equal to 0 करते हैं तो दैन n जिहड़ा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इनू आपां की कवांगे करैक्टरिस्टिक कवांगे। इफ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर n विद this property above property mean na is equal to 0 property then the ring is said to be of characteristic 0 इनू आपां की कवांगे करैक्टरिस्टिक 0 कवांगे। हाँ जी थ्योरम है द करैक्टरिस्टिक ऑफ इन इंटेग्रल डोमेन इज आइदर प्राइम और 0 इन पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर प्राइम और 0। आप यही प्रूव करते हैं कि इंटेग्रल डोमेन की करैक्टरिस्टिक की होंगी है जब तक प्राइम होंगी है या 0 होंगी है। लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन ले लिया आर की है इंटेग्रल डोमेन इफ करैक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू 0 if we define characteristic of r is the 0 then we are done क्योंकि यही प्रूव करना सी जब तक प्राइम आ जा 0 आ जो ऑलरेडी करैक्टरिस्टिक 0 आ देन यही आप प्रूव करना सी खत्म हो गया। सो सपोज दैट हुण इसलिए आप की लवांगे सपोज दैट करैक्टरिस्टिक ऑफ r दी करैक्टरिस्टिक नू n नाम देता n इज नॉट इक्वल टू 0 n की है नॉन 0 देन एंड की है करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन की होंगी है एन ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हाँ जी एन ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर आ गया। दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 0 बट m1 is not equal to 0 for any m is less than n other for otherwise m is equal to 0 for all a belongs to r which would contradict the minimality of n। जिहड़ा n करैक्टरिस्टिक हुंदा वो की हुंदा सब तो लीस्ट हुंदा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुंदा बट जे n तो घट कोई m ले लेने आ वो m की आंदा अपने को नॉन 0 आ जाता मतलब कि m इंटू 1 की है नॉन 0 आ। हाँ जी m इंटू 1 की है नॉन 0 क्यों क्योंकि जे अपने को m इंटू 1 की जगह a भी ले सकते हो m इंटू a 0 हो जाता दैन m करैक्टरिस्टिक बन जाती m करैक्टरिस्टिक का मतलब की है m n तो घट आ बट n तो करैक्टरिस्टिक दे विच सब तो लीस्ट सी उस तो छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर तो ये अपने को रिजल्ट आ गया। हाँ जी नेक्स्ट हुण देखो सपोज n इज कंपोजिट आप की प्रूफ करना n इज प्राइम मान लिया n की है कंपोजिट आ let n is equal to pq जे कंपोजिट है तो pq दे बराबर होएगा for some integers pq where pq lies between 1 to n। हाँ जी ਇਹਦਾ मतलब इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं p into 1 q into 1 is equal to pq into 1 pq किदे बराबर है n दे बराबर n into 1 क्योंकि n करैक्टरिस्टिक का दैट मीन्स ये किदे बराबर होएगा 0 दे बराबर होएगा ऊपर अपने को आ गया n किदे बराबर होएगा 0 दे। हाँ जी सिंस R is an integral domain का मतलब की हुंदा विदाउट जीरो डिवाइसेस का मतलब की हुंदा जे प्रोडक्ट 0 आ ते दैन दोनों दे विचों एक 0 होएगा। हुण इत्थे P1 ते Q1 इन्हां दोनों दी प्रोडक्ट 0 आ ते दैन आइदर P1 इज इक्वल टू 0 और Q1 इज इक्वल टू 0 पर P ते Q तो दोनों नॉन 0 आ क्योंकि आप ऊपर लिखते आए हैं P ते Q तो 1 तो n लाइक 1 लाइक करते हैं none of which are true दोनों चो कोई भी ट्रू नहीं हैगा therefore n can never be a composite ਇਹਦਾ मतलब composite नहीं होएगा and so n की होएगा प्राइम होएगा। एक पासे पहला ਆਪਾਂ ਇਹ प्रूव करता कि जो n करैक्टरिस्टिक लिखी सी ओदी नॉन 0 करैक्टरिस्टिक ले ली ते दैन ਆਪਾਂ ਇਹ प्रूव करता कि n इज करैक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लगाई थी n इज इक्वल टू 0 बट उत्ते जो n 1 लिखिया अपने को क्योंकि इंटैग्रल डोमेन दे विच आइडेंटिटी भी आएगी
ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲਈ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੇ m ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੀ ਕਿਊ, m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀ ਕਿਊ ਆ, P1 ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, Q1 ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ P ਤੇ Q 1 to n ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ P ਤੇ Q ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, n ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਨੀਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। दैट मीन्स अपने को की आ गया एवरी फील्ड इज एंड कैन नेवर बी ए कंपोजिट, एंड की होएगा प्राइम होएगा, ये आप प्रूव कर दिता। हाँ जी, अपने को की सी करैक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटैग्रल डोमेन ऊपर आप प्रूव करके आए सी कि एवरी फील्ड इज एन इंटैग्रल डोमेन। ਇਹਦਾ मतलब जे इंटैग्रल डोमेन लिए रिजल्ट इज ट्रू आके करैक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर प्राइम और जीरो, ਤੇ ਦੈਨ ਸੌਰੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੀਲਡ ਲਈ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟੇ ਲੈਕਚਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।